Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn the first story of grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So पहला कहानी है उसने कहा था. So उसने कहा था was the name of the story. उसने यहाँ पे एक सर्वनाम है क्योंकि किसी के नाम के जगह ये लगा हुआ है. So उसने कहा था means that person was told. That means here in the story some person was there who told to someone something. So let's see what is there actually inside this story. So कहानीकार का परिचय मीन्स जो कहानी लिखता है उसे कहानीकार बोलते हैं. So who is going to write a story? We are telling in Hindi कहानीकार, story writer. So the first paragraph is about the introduction of this particular story writer. उसने कहा था कहानी के कहानीकार के बारे में. सो कहानी के लेखक कौन है? कहानी में लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं. हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारों में वे भी एक हैं. उनकी रचनाओं में जीवन की घटनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है. सरल शैली तथा सरल वर्णन के कारण उनकी रचना में पाठकों की रोचकता बढ़ती है. इस कहानी में वे एक आदर्श प्रेम दर्शन प्रस्तुत करते हैं. दैट मीन्स the writer of the story is Sri Chandradhar Sharma Guleri. So listen children, you have to remember all the names of the story writer, prose writer, poem writer. So whatever, how many lessons are there, you will be careful about the writer names, poet names, story writer's name, and where they born, when they died, what are the main important books they have written during that time. So these things you have to remember because most of the time it will ask in a public exam as 1 mark question. So you will get around 2 to 3 questions this type. So be careful about that. So the writer of this story उसने कहा था इस श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी. हिंदी साहित्य हिंदी के जितने प्रसिद्ध कहानीकार हैं मतलब in Hindi literature so many famous story writers are there. So Chandradhar Sharma Guleri is one of them. उनकी रचनाओं में जीवन की घटनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है. जीवन की घटना मीन्स जीवन मीन्स लाइफ. In our daily life, in our life, so many incidents are happening per day. Minimum 3-4 incidents are happening. They may be you are just ignoring those things, but here this writer capturing those things, small things, or whether it will be a very important thing. So everything was captured by this writer, and he has to narrate on this small incidents of the life. So यहाँ पे उनकी रचनाओं का यथार्थ चित्रण, जीवन में जितने सारे घटना घटते हैं उनका यथार्थ चित्रण मिलता है. सरल शैली तथा सरल वर्णन के कारण उनकी रचना में पाठक की रोचकता बढ़ती है. जो भी वो लिखते हैं सरल शैली में लिखते हैं. The way he was narrating, the way he was explaining, or the way he was representing the story was very simple. सरल वर्णन भी करते हैं. Explanation was also very simple. He used to use the very simple words which usually normally readers can understand. So इसी वजह से so many readers were interested to read his book. इस कहानी में उन्होंने एक आदर्श प्रेम दर्शन प्रस्तुत किया है. आदर्श मीन्स आइडियल. सो एन आइडियल लव स्टोरी और आइडियल लव इंसिडेंट वाज एक्सप्लेन्ड इन दिस स्टोरी. सो सारांश, कहानी आपका बहुत सारा पेज है. अराउंड दिस story covered of 4 to
5, 6, 7 pages I think. If I will take the slides, it will take more time for the video. जो कि कहानी पूरा आपको इतना भी जानना जरूरत नहीं है. So the summary, if you know, you are able to answer the book back question answers, and in your exam also alone from the book back question, however it is there, those questions are asked in your exam. So I will explain all those questions along with the summary of the story. सारांश आपका समरी हुआ. सारांश में भी कहानी का परिचय, कहानीकार का परिचय पहले लिखा हुआ है. उसने कहा था नामक इस कहानी में कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है. यह कहानी के दुनिया में श्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है. दैट मीन्स उसने कहा था वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एमंग ऑल द फेमस स्टोरीज. उनकी रचनाओं में, उनकी मतलब किनकी, उनकी मीन्स चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी यहाँ पे सर्वनाम हुआ. It is a pronoun. Instead of Sri Chandradhar Sharma Guleri, we are using unki. So no need to repeatedly use this same name. If we are going to use the same name, na, it will not very good to read, or we are not feeling very good to hear also. So जहाँ पे संज्ञा के बदले कुछ अलग सा शब्द इस्तेमाल होता है और व्यवहार होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं. सो उनकी एक सर्वनाम है, उनकी यहाँ पे श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जगह इस्तेमाल हुआ है. तो उनकी रचनाओं में जीवन की घटनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है. इस कहानी में उन्होंने एक आदर्श प्रेम का दर्शन प्रस्तुत किया है. तो कहानी का सारांश कुछ इस तरह है. अमृतसर, अमृतसर इज इन पंजाब. पंजाब के अमृतसर शहर में लहना सिंह नामक एक 12 साल का लड़का था. सो देयर वाज अ बॉय whose age was 12 years. So in that city there was a boy of 12 years whose name was लहना सिंह. So अमृतसर की उस शहर में लहना सिंह नामक एक बालक रहता था. वह रोज बाजार में 8 साल की एक लड़की से मिलता था. So he used to, if he is staying in Amritsar city, for some work he has to come to the market. So जब वो मार्केट आता था, जो बाजार आता था, बाजार means market. So regularly he used to come to the market, and at that market place he used to meet one 8 years old girl. वो उससे पूछा करता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, क्या तेरी कुड़माई हो गई. एक कुड़माई ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये पंजाबियों में बोला जाता है. कुड़माई का मतलब सगाई जैसे होता है, एंगेजमेंट जैसे होता है. सो वहां पे वो पूछता है, 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, whether you are engaged. एक बार वो लड़की तंगे के नीचे आने वाली थी. तंगे मीन्स घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी के नीचे वो लड़की आने वाली थी. दैट मीन्स कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, दुर्घटना घटने वाली थी, लेकिन लहाना सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचाया. So this boy was not, Lahana Singh, well, at that time he was not caring about his own life. He saved that girl. लहाना ने एक दिन लहाना ने रोज की तरह उसी लड़की से वही सवाल किया. वही सवाल में क्या सवाल था, क्या तेरी कुड़माई हो गई. तो वही सवाल जब उसने किया, तब लड़की ने बोला कि हाँ हो गई, बताकर तुरंत वहां से चली गई. सो he used to ask that question to that girl. So one day also that boy asked the same question to that girl, and in the meantime that girl also say yes, मेरी कुड़माई हो गई है. तो ये बोलकर वो वहां से चली गई. तो यहाँ पे 25 साल बीत गए. इसके अंदर ये लड़की वो कह के भागने के बाद इसी बीच 25 साल बीत जाते हैं. दैट मीन्स 25 years passed away. लहाना सिंह सेना में जमादार बन गया. Within this 25 years, this 12 years boy Lahana Singh became the jamadar in a army. जमादार एक पदवी का नाम है, एक पोजीशन का नाम है. जैसे हम लोग आर्मी में बोलते हैं कैप्टन, लेफ्टिनेंट, लाइक दैट इट वाज अ पोजीशन.
सो एक दिन उसे युद्ध में जाने की आज्ञा मिली. सो एक बार क्या हुआ, उसे परमिशन, ही वाज आस्क्ड टू गो फॉर अ वॉर. लहाना सिंह रास्ते में सूबेदार के घर गया. सो जब वो युद्ध के लिए निकल रहा था तो रास्ते में जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते में सूबेदार का घर आया. सूबेदार एक पोजीशन होता है जो कि जमादार के पोजीशन से ऊपर होता है. दैट मीन्स दिस सूबेदार इज अ पोजीशन which is higher than the post jamadar. So whenever Lahana Singh left his own house and he was leaving for the war on the road, during his path Subedar's house was there. So वो भी सूबेदार के घर गया. सो जहाँ पे सूबेदार के घर जाता है तभी जाकर वो सूबेदार की पत्नी को देखा तो उसको आश्चर्य हुआ. सो whenever he reached at the house of Subedar, he saw the wife of Subedar and he was very surprised. Why? क्योंकि वह लहाना सिंह की बाल प्रेयसी थी. बाल प्रेयसी थी मीन्स childhood love, you can say बाल प्रेयसी. So that lady was no one, that 8 years old girl whom he used to ask the same question in the market. So whenever he saw that lady, he remembered all those things what happened in Amritsar. So he was a little bit surprised. उसने लहाना सिंह को पुराने बातें याद दिलाई और कहा कि मेरे पति और मेरे बेटा बोधा सिंह दोनों युद्ध में जा रहे हैं. जिस तरह तुमने मुझे तांगे के नीचे दबने से बचाया था उसी तरह मेरे पति और मेरे बेटे को भी बचाना. So when that lady also met Lahana Singh, also she was able to recognize Lahana Singh was no one, that 12 years old boy who saved her life during the childhood time. So he was asking, he was requesting to, she was requesting to Lahana Singh that how you saved my life during the childhood time. You have to save my husband and my son's life because both are going for war and no one was there in my house apart from my husband and my son. So यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये लहाना सिंह होना चाहिए. लहाना सिंह सूबेदार और उसका बेटा बोधा सिंह युद्ध में गए. वहां बोधा सिंह बीमार पड़ गया. बीमार पड़ गया मीन्स ही फॉल सिक. सो बोधा सिंह बीमार पड़ा वहां पे. सो लहाना ने उसकी ड्यूटी की. सूबेदार दुश्मनों के चाल में फंस गया. सो whenever this Lahana Singh, Subedar and the son of Subedar, Bodha Singh, all three went for war. At that time, Bodha Singh became very sick, became very ill. So instead of Bodha Singh, Lahana Singh do the duty of Bodha Singh as well as his own duty. Subedar also trapped by the enemies. Subedar दुश्मनों के चाल में फंस गया. Trapped by the enemies. Some from the from enemies camp also. This Lahana Singh saved or rescued the Subedar. लहाना ने उसको बचाया. युद्ध में लहाना भी घायल हो गया. सो जब वो बचा रहा था सूबेदार को तभी लहाना भी घायल हो गया. घायल का मतलब आपका होता है इंजर्ड. तो लहाना भी घायल हो गया सूबेदार को बचाने वक्त. फिर भी चिकित्सा की गाड़ी में सूबेदार और उसके बेटे को घर भेज दिया. ये घायल था, लहाना घायल था. Lahana was injured. Instead of caring about himself, about his own, what he did, he sent Subedar and his son Bodha Singh to the house. Instead of going in an ambulance, he sent this father and son to the house through this vehicle. सूबेदार ने लहाना सिंह दिया और सूबेदार से लहाना सिंह कहा कि घर जाने के बाद सूबेदार ने से कह दे कि उसने जो कहा था उसे मैंने कर दिया. So whenever this both father and son if to go return to their home, in the meantime Lahana Singh also telling that Subedar ji, whenever you will reach at your home, you just inform your wife that whatever she requested me, I fulfill my
promise, whatever I promised her, I fulfilled it. So सुबेदारनी ये हुआ स्त्रीलिंग आपका, सुबेदार हुआ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जब लिंग बदलो आपको आएगा तो सुबेदार सुबेदारनी. So he is Lahana Singh. In the meantime, he was telling to Subedar. So whenever you will reach at your home, you just inform your wife that I fulfill my promise. I keep my promise. So जो मैंने वादा किया था उसे निभाया. आपकी पत्नी ने जो मुझसे वादा लिया था मैंने वो निभाया. तो ऐसा कहकर लहाना मर गया. उसके बाद लहाना मर जाता है. लहाना डाई. कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है. इक्के का मतलब हुआ आपका एक घोड़े की गाड़ी. मरहम मतलब औषधियां और मेडिसिन का लेप होता है. चाबुक कोड़ा जिसमें हंटर जिसे आप बोलते हैं. बिरादरी वाला बंधु और रिलेटिव्स. मजाल बल. कड़ा हुआ मतलब खींचा हुआ. पुल्ड. खंदक मतलब खाई और डिग. धावा करना मतलब चढ़ाई करना. सिगड़ी मतलब छोटी अंगूठी. फिर आते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट समरी. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी नाइस स्टोरी. Then पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर मतलब whatever the book back questions are there, all the question along with the answers I am going to explain you. So these questions if you prepare, that's enough for your exam. So uh, prepared well all the 1 mark question along with the 5 line that 4 mark questions, all are important. So पहला क्वेश्चन आपका इस तरह आता है. फर्स्ट रोमन लेटर. एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए. दैट मीन्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 or 2 लाइन्स. उसने कहा था नामक कहानी का लेखक कौन है? उसने कहा था नामक कहानी के कहानीकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं. हजारा सिंह और बोधा सिंह कौन थे? हजारा सिंह सूबेदार जी का नाम था. सो हजारा सिंह सूबेदार थे और बोधा सिंह उनका बेटा था. सूबेदारनी ने लहाना सिंह से क्या प्रार्थना की? सूबेदारनी what was the request or what सूबेदारनी was praying to लहाना सिंह. सूबेदारनी लहाना सिंह की बाल प्रेयसी थी, इसलिए उसने उससे प्रार्थना की कि जिस तरह तुमने मुझे तांगे के नीचे से दबने से बचाया था उसी तरह मेरे पति और बेटे को बचाना. जर्मन का सैनिक अफसर किस वेश में आया? खाकी कोट पहना हुआ था और जीन का कुर्ता वो पहना हुआ था. सो ये दोनों पहनकर वो आया था. लहाना सिंह ने युद्ध में घायल होकर किसको बचाया? हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को बचाया. लहाना सिंह ने क्यों अपने प्राण देकर सूबेदार और उनके बेटे को बचाया? क्योंकि उसने सूबेदार की पत्नी को वचन दिया था कि वो किसी न किसी तरह उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा. दो ही वॉज प्रॉमिस्ड. लहाना सिंह ने प्रॉमिस किया था सूबेदारनी की कि मैं उन दोनों की लाइफ को सेव करूंगा. तो ही सेव्ड हिज वाइफ हिज हस्बैंड एंड हिज सन्स लाइफ. सो लहाना सिंह based on his promise to the Subedar, he saved the husband of her and her son also. इसलिए लहाना सिंह अपने प्राण देकर उन दोनों को बचाया. सो ये हुआ एक लाइन या 2 लाइन वाले, एक वाक्य और 2 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर. अभी आते हैं 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए. दैट मीन्स दिस क्वेश्चंस you have to answers for the answers should be limited within 5 lines. अमृतसर बाजार में हुई घटना का वर्णन कीजिए. So what was the incident happened in the Amritsar market? You have to narrate in 5 lines. So अमृतसर में लहना सिंह नामक 12 साल का एक लड़का था. वो रोज बाजार में 8 साल की एक लड़की से मिलता था और उससे पूछा करता था क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती थी. तो यही सिर्फ आपको लिखना है. 25 साल बाद लहना सिंह किससे मिला और मिलने वाले की प्रार्थना क्या थी? ये दूसरा क्वेश्चन हुआ. आपका उत्तर इस तरह होना चाहिए. 25 साल बाद लहना सिंह सूबेदार की पत्नी से मिला और सूबेदार की पत्नी लहना सिंह की बाल प्रेयसी थी, मतलब वो बचपन से उसे जानता था.
उसने प्रार्थना की कि मेरे पति और बेटा दोनों युद्ध में जा रहे हैं, जिस तरह तुम मुझे तांगे के नीचे दबने से बचाया था, उसी तरह मेरे पति और बेटे को बचाना। लहाना सिंह ने बाप और बेटे को कैसे बचाया? लहाना सिंह सूबेदार और उसका बेटा बोधा सिंह युद्ध में गए थे। ये तीनों युद्ध में गए थे। वहां बोधा सिंह बीमार पड़ गया। तब लहाना ने उसकी ड्यूटी की और स्वयं की भी ड्यूटी की। स्वयं मतलब खुद की, अपनी। सूबेदार दुश्मनों की चाल में फंस गया था। घायलों को ले जाने के लिए जब चिकित्सा की गाड़ी आई, लहना ने उन दोनों को उस गाड़ी से भेज दिया, लेकिन खुद नहीं गया और उसके बाद वो मर गया। कहानी के शीर्षक की विशेषता क्या है? शीर्षक मतलब जब कहानी का हमारा नाम है, द स्टोरी ऑफ द नेम। उस शीर्षक का विशेषता, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, उसने कहा था। यहाँ पे यह विशेषता है कि पवित्र प्रेम आत्म बलिदान से नहीं चुकता। ये आपका कहानी का पूरा विशेषता हुआ। पवित्र प्रेम मतलब, पवित्र का मतलब हुआ सैक्रेड और होली, प्रेम का मतलब हुआ लव और अफेक्शन। जहाँ पे आपका अफेक्शन, जहाँ पे आपका लव और जहाँ पे आपकी केयरिंग होगी, ट्रू लव होगा, जहाँ पे आपका ट्रू केयरिंग होगा, जहाँ पे आपका होली और सैक्रेड लव होगा, वहां पे आत्म बलिदान मतलब खुद की बलिदान, you are going to sacrifice your life. In this story, Lahana Singh sacrificed his own life for this sacred love only, because he knew that girl in very childhood, and he used to like that girl. So after 25 years, when he saw that lady, and as a wife of Subedar, senior officer of Lahana Singh, then as per the request of that lady, that how you saved me on that time, you have to save my husband and my son. So उसी वजह से, उस लेडी की वजह से, उस औरत की वजह से और उसकी प्यार की वजह से, उस पवित्र प्रेम की वजह से उसने खुद की जान परवाह किए बिना उन दोनों को बचाया और खुद मर गया। वास्तव में यही प्रेम मनुष्य को आनंद बनाने रखता है। इस तथ्य को स्थापित करना ही इस कहानी की विशेषता है। मतलब प्रेम ही शाश्वत और पवित्र प्रेम हमेशा मानव समाज में रहना चाहिए, यही यहाँ पर लेखक दर्शाना चाहते हैं। So this is all about the question answers. I hope children you understood all the explanation of that particular summary as well as the question answers. I hope you liked it. Thank you so much, students. Thanks for watching my channel. Thank you.